Good morning, students. Welcome to the online classes of City Women's College. And today, in this video, we shall cover the topic which was started yesterday. So, yesterday we started the topic of school complex. विद्यालय परिसर के बारे में कल हमने पढ़ना शुरू करा था. Now, उसी टॉपिक के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसको आज हम कवर करेंगे. Now, before we start today's topic, let us just recall what we have learned yesterday. So, इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ येस्टरडेज हमने समझा था कि स्कूल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, विद्यालय परिसर क्या होता है, एंड व्हाट आर इट्स वेरियस कंपोनेंट्स, व्हाट आर इट्स वेरियस मेन पार्ट्स जिनकी वजह से एक स्कूल कॉम्प्लेक्स जो है वो डेवलप किया जाता है, राइट जिसमें कल हमने स्कूल बिल्डिंग के बारे में, स्कूल लाइब्रेरी के बारे में, स्कूल हॉस्टल, लैबोरेटरी, म्यूज़ियम जैसी चीज़ों के बारे में पढ़ा था and how they affect the whole teaching learning process. Now here today we will continue with the remaining parts, and for that we have the first part, school furniture. School furniture की अगर हम बात करें, so furniture this is something which we are aware of. हमारे घर में भी furnitures होते हैं, for example bed है, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं. नाउ इन द सेम मैनर स्कूल में भी जो फर्नीचर यूज़ करा जाता है, जैसे कि टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, कबर्ड्स हैं, डेस्क हैं, ऑल दीज फर्नीचर्स आर टर्म्ड एज द स्कूल फर्नीचर. बेसिकली वो फर्नीचर या ऑल दोज थिंग्स विच आर यूज्ड इन द स्कूल इन रेफरेंस टू द फर्नीचर, हम उसी को स्कूल फर्नीचर कहते हैं. ठीक है. सो हेयर लेट अस सी ऑन योर स्क्रीन, यू कैन सी दिस पिक्चर जिसमें स्कूल फर्नीचर के बारे में लिखा हुआ है. वी विल वन बाय वन अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. सो यू कैन सी द फर्स्ट line written is that the importance of school furniture is undeniable. Of course, it cannot be ignored. School furniture is of great significance. It plays a significant role in the effectiveness of student learning. Absolutely. It is the main interface between the user and the building. Now, here we have to understand that furniture is not only important for the students, but it is also important from the viewpoint of the teachers also, right? Now let us see how does it plays role for both the students and teachers. Now for students, you can see here it is written that for students it is what they sit on. Obviously बच्चों के लिए अगर आप देखो तो हर एक बच्चे के लिए हर एक क्लास में देर आर स्पेसिफिक नंबर ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स जो बच्चों के लिए अलॉट करी जाती हैं. सो इफ़ वी टॉक अबाउट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द चिल्ड्रेन, फर्नीचर का यूज़ बच्चे करते हैं बैठने के लिए एंड टू पुट देयर बिलोंगिंग्स एट, अपना सामान वो रखते हैं. दे यूज़ द टेबल्स फॉर राइटिंग इन देयर नोटबुक्स एज अ सपोर्ट. ठीक है. और टीचर्स के लिए भी फर्नीचर बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज इट इज़ हाउ दे ऑर्गेनाइज द स्पेस दे टीच इन, वेयर दे स्टोर एंड एक्सेस ऑल देयर डेली इक्विपमेंट्स. येस, फर्नीचर्स का यूज़ करके टीचर्स अपना सामान उसमें रखते हैं एंड दे मेक स्पेस फॉर देयर टीचिंग लर्निंग. नाउ फॉर विजिटर्स टू अ स्कूल, अब स्टूडेंट्स और टीचर्स के अलावा भी स्कूल में जो विजिटर्स आते हैं उनके लिए फ़र्नीचर किस तरीके से यूज़फुल रहता है. The furniture they encounter can form their expressions of the place. The tactile and visual characteristics of reception furniture can welcome and orientate, providing instant legibility in an unfamiliar space. Now, what you have to understand is कि किसी भी जगह का जो माहौल होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है. एंड what kind of furniture you are using, how its quality is, all these things does matter and they impact you in a significant manner. So if someone visits your school and if they see the furniture of a good quality, or if they are comfortable with everything they are using and occupying, obviously they will have a good impact and they will have a good picture of the school, right? Now thus in a school there should be availability of all needed furniture such as chair, table, desk, etc. Yes. Now since furniture is very important for keeping our belongings and for sitting and for फीलिंग कनेक्टेड एंड फॉर गेटिंग आवर स्पेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर होना चाहिए पूरे स्कूल में. एंड द फर्नीचर शुड बी ड्यूरेबल इन नेचर. ऐसा ना हो कि हम कोई भी फर्नीचर ले आए हैं जिसकी कोई क्वालिटी नहीं है या बहुत जल्दी जो डैमेज हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए. ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू गो टू द मार्केट टू बाय द फर्नीचर देयर आर various options for you, but you have to understand the comfortable level of the students and teachers and everyone. बहुत ही अनकम्फर्टेबल क्वालिटी का या अनकम्फर्टेबल मटेरियल का फर्नीचर खरीदना नहीं चाहिए. ओके. सो एवरी स्कूल मस्ट हैव गुड क्वालिटी ऑफ फर्नीचर्स in order to provide convenience to
the students and teachers and everyone that is the part of the school. So this is what school furniture is about. Now let us move forward and see what's next in this topic. So okay, so next we have the school office. Yes, next thing which we have is school office. Now you must have heard of this कि आखिर school office क्या होता है. See, school office is basically the place where the working of the organization takes place. ठीक है, ये स्कूल का जो ऑफिस है जहाँ पे सारा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है या जो बाकी के आपके काम होते हैं वो सारे यहाँ स्कूल ऑफिस में किए जाते हैं. एंड यू कैन सी व्हाट इज़ रिटन दैट इट इज़ basically the place where controlling for the working of the effective organization of the total school is done. Yes, यानी जहाँ से पूरे स्कूल को कंट्रोल किया जाता है, जहाँ पे ऑल द डिसीजंस आर मेड और जहाँ पे सारी चीज़ों की फंक्शनिंग होती है. ठीक है, it should be centrally located to serve as a good coordinating center of the school. Now school office should be allocated in the mid of the school जहाँ से वो पूरे स्कूल को कोऑर्डिनेट कर सके, कंट्रोल कर सके. ठीक है, एंड इट शुड बी प्रोवाइडेड विद नेसेसरी इक्विपमेंट्स, और जितने भी इक्विपमेंट्स ज़रूरी होते हैं वो सारे स्कूल ऑफिस में होने चाहिए. फॉर एग्जांपल all the furnitures, for example all the registers and records which are mandatory. ठीक है, the internet facilities and everything that is required to set up an effective school office, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए. let us see what's next. okay, now यहाँ पे स्कूल ऑफिस से ही रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं. now what are these points, let us see. Now what kind of things it should consist? A general reception room for visitors. Now school office should have a reception place और a reception room जहाँ पर जो visitors हैं, जो मिलने आ रहे हैं या जो किसी भी तरह की इंक्वायरी करने के लिए लोग आ रहे हैं वो आ सकें. ठीक है, and they can visit or sit at that place. Then we have storage space with filling cabinets for stationery, files and other administrative and educational supplies. Yes, there should be some storage place. एक ऐसी जगह होनी चाहिए हमारे पास जहाँ पे हम चीज़ों को स्टोर कर सकें. Now what kind of things? For storing the stationery item, for storing the files and for storing any other educational supplies. Next we have office for vice principal, supervisors etc. Yes, जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ होती हैं उनके लिए ऑफिस होना चाहिए. फॉर एग्जांपल देयर शुड बी ऑफिस फॉर द वाइस प्रिंसिपल एज वेल एज द प्रिंसिपल ऑल्सो. द सुपरवाइजर्स, उनके लिए भी ऑफिस होने चाहिए जहाँ पे वो बैठ करके न केवल अपने काम कर सकें बल्कि अपने अपने डिपार्टमेंट्स को या बाकी सारी चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकें. देन अ रूम फॉर कीपिंग कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स. येस, देयर शुड बी अ प्रॉपर रूम जहाँ पे जितने भी हमारे कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स हैं स्कूल के उन्हें स्टोर किया जा सके. बिकॉज ऑब्वियसली दोज रिकॉर्ड्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस और वो बाहर ऐसे सबके लिए नहीं रखे जा सकते. दे कंटेन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्कूल एक्टिविटीज़. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा रूम या एक ऐसा स्पेस होना चाहिए जहाँ पे आप अपने कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स को रख सको. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट्स नेक्स्ट इज देयर. ओके, नाउ स्कूल कॉम्प्लेक्स में जो हमने अभी तक चीज़ें पढ़ी हैं कल से लेकर के आज तक के टॉपिक में, जिसमें स्कूल बिल्डिंग, लाइब्रेरी, स्कूल हॉस्टल, म्यूज़ियम, लैबोरेटरी एंड नाउ स्कूल फर्नीचर की हमने बात करी और स्कूल ऑफिस की बात करी. सो दीज वर सम ऑफ द वेरियस इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ द स्कूल कॉम्प्लेक्स जिनकी मेंटेनेंस और जिनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है in order to create an effective environment in the school. Now उसी टॉपिक में अब आगे हम बात करते हैं स्कूल रिकॉर्ड्स की कि आखिर स्कूल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड बाय द स्कूल. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द मीनिंग ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स. Now, school records are basically the registers and the records which are very important or very necessary part of any organization. You can see that thing is also written over here that they provide deep insight. Insight refers to the information into the state and status of the organization. देखिए, हम जब भी कोई स्पेशली जब हम स्कूल एक हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, बिकॉज स्कूल इज़ समथिंग जो एक बहुत ही बड़े पैमाने पे जिसको हम चलाते हैं. ठीक है, सो ऑब्वियसली वी नीड द रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर जो स्कूल की डेली एक्टिविटीज़ को न केवल जहाँ वहाँ पे नोट किया जा रहा है. इन फैक्ट दीज रिकॉर्ड्स गिव अस इंफॉर्मेशन
ऑफ ओवर दी ऑल ईयर्स ऑफ द स्कूल, इतने सालों से जब से वो स्कूल ओपन हुआ है क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स हैव बीन अकर्ड, जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें इस रिकॉर्ड्स से मिल जाती है। और अलग अलग तरह के हर एक एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स मेंटेन किए जाते हैं। सो अगर किसी भी पर्सन को क्रॉस चेक करना है रिगार्डिंग एनी स्पेसिफिक थिंग, तो वो उस रिकॉर्ड को देख करके चेक कर सकता है। Now let us just see that what kind of records are maintained by the school. Okay, so yes, the first thing which we have is the school calendar. Okay, now what is the school calendar? Basically this is a sort of an academic calendar or academic record जहाँ पर ईयरली जितनी भी एक्टिविटीज़ होनी होती हैं ड्यूरिंग एट दैट सेशन ऑफ द स्कूल, वो सारी चीज़ें पहले से प्लान करके उसमें मेंशन करी जाती हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ रिटन ओवर हियर, दैट एवरी स्कूल शुड प्रिपेयर अ कैलेंडर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच academic session. Yes, दिस स्कूल कैलेंडर इज़ ऑलवेज बीइंग प्रिपेयर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन। हमेशा ये साल की शुरुआत में या न्यू सेशन की शुरुआत में इसको बना लिया जाता है। देन ऑल द प्रोबेबल डेट्स ऑफ वेरियस इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़ टू बी एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द सेशन is reflected on the school calendar. Yes, all those activities which have to be occurred in the school during that session, उनकी dates और उनके days specify कर दिए जाते हैं कि कब किस दिन कौन सी activities होंगी. You must have seen that these school calendars are also being published in the school diaries of the students, जिसमें साल भर की एक्टिविटीज़ दे रखी होती हैं, what kind of functions will be टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द होल ईयर, ऑल्सो कब कौन से हॉलीडेज़ एंड वेकेशंस होने वाले हैं, फॉर एग्जांपल द समर वेकेशंस और ऑटम ब्रेक और विंटर ब्रेक, all these sorts of things or information is also given in the school calendar, right? Plus the dates regarding the examinations schedule is also given, that when the unit tests are expected to take place or when the half yearly or annual examinations are going to take place. Such sort of information is also given in the school calendar. Now then we have the logbook. Now let us see what is a logbook. A logbook is a school diary and permanent record for future reference. It is usually required by departments for writing up the reports of inspectors' visits and the remarks on the condition of the school. Okay, now basically what happens that जो स्कूल इंस्पेक्शन जब होता है तो ऑब्वियसली वी हैव सम एक्सटर्नल अथॉरिटीज़ जो बाहर से आते हैं और स्कूल को इंस्पेक्ट करते हैं. सो वॉट एवर दे गिव द रिमार्क्स और वॉट एवर दे टेल और ट्राई टू मेंशन अबाउट आवर स्कूल्स, वो सारी चीज़ें लॉग बुक में लिखी जाती हैं, मेंशन करी जाती हैं. ठीक है, एंड इट इज़ अ परमानेंट रिकॉर्ड, इसको हमेशा रखा जाता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए. ठीक है, और ये सारे ही डिपार्टमेंट्स के थ्रू यूज़ करा जाता है. और अलग अलग रिपोर्ट्स जो कि किसी इंस्पेक्टर के विज़िट की हैं या स्कूल को लेकर के जो रिमार्क्स वगैरह दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें लॉग बुक में मेंशन करी जाती हैं. नाउ लेट अस सी व्हाट्स नेक्स्ट. देन वी हैव द एडमिशन रजिस्टर. ओके, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि एडमिशन रजिस्टर इज़ बेसिकली द रिकॉर्ड विच सर्व्स द पर्पस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एडमिशन्स. एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसमें रिकॉर्ड करी जाती है. जब भी किसी स्कूल में एडमिशन्स होते हैं तो ऑब्वियसली दो तरह की चीज़ें होती हैं. पहला तो ये दैट फर्स्ट रजिस्टर इज़ मेड जहाँ पे इंक्वायरी के लिए लोग आते हैं. ठीक है, जहाँ पे पेरेंट्स या गार्जियंस जो हैं स्कूल के बारे में पता करने आते हैं, दैट व्हाट काइंड ऑफ फी स्ट्रक्चर दे आर हैविंग, व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ दे आर प्रोवाइडिंग, राइट? तो कि जितने लोग इंक्वायरी करने के लिए आते हैं और उसमें से कितने लोगों ने एक्चुअली में एडमिशन लिया, वो सारी चीज़ें जो है रिकॉर्ड करी जाती हैं. ठीक है, इट रिकॉर्ड about all the students that have been admitted इन दैट सेशन. उस साल उस टाइम पर कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, किस किस क्लास में एडमिशन लिया, ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग रिकॉर्डेड इन द एडमिशन रजिस्टर. Then the next thing is cash book. Now cash book is an important record of all the day-to-day money transactions. Daily basis पे जितने भी money related transactions होते हैं उन सब का record cash book में रखा जाता है. Then we have the stock register. Now it is the register of all the movable property in the school. Whenever any equipment or furniture of permanent nature is purchased and kept, it must be duly entered up in the property register. Now stock register, stock का मतलब ही मटेरियल से है, यहाँ पे सामान से है. That if any sort of equipment or if any sort of thing or permanent furniture or permanent thing is
बॉट इन द स्कूल, जब भी कुछ भी ऐसी चीज़ खरीदी जाती है जो परमानेंट नेचर की होती है, जो हमेशा स्कूल में रहने वाली है, उन सारी चीज़ों को, उन सारे मटेरियल्स को स्टॉक रजिस्टर में मेंशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्कूल ने 10 कबर्ड्स का ऑर्डर दिया है, 10 कबर्ड्स खरीदे हैं, तो स्टॉक रजिस्टर में उस डेट में मेंशन किया जाएगा दैट ऑन दिस डे 10 कबर्ड्स खरीदे गए थे, उसकी प्राइस क्या थी एंड एवरीथिंग, जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो स्टॉक रजिस्टर में मेंशन करी जाएगी। इससे क्या होता है कि स्कूल में जितना सामान होता है उसका एक रिकॉर्ड रहता है, प्लस ये भी पता होता है कि वो सामान कब, किस मंथ में, किस डेट में, किस ईयर में खरीदा गया था। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट नेक्स्ट इज देयर। Yes, the next is the service book. Now, this contains the service history of every officer, teacher, clerk, peons, and others working in the institution. Obviously, everyone who is the part of the school या जो भी स्कूल में काम कर रहे हैं उन सबका भी अपना एक रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो सर्विस बुक जो एक रिकॉर्ड है उसमें क्या होता है, उसमें जितने भी स्कूल में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, चाहे वो टीचर्स हों, ऑफिसर्स हों या क्लर्क्स हों, इवन प्यून्स हों, उन सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है, उनके बैकग्राउंड के बारे में, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस सर्विस बुक में मेंशन करी जाती है। प्लस उसमें ये भी मेंशन होता है कि वो कब तक, कब से जो है इस स्कूल में काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑल दी सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन इन द सर्विस बुक। देन वी हैव द pupils अटेंडेंस रजिस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर आपने देखा भी होगा, ठीक है, बिकॉज एवरी क्लास हैज़ देयर अटेंडेंस रजिस्टर एंड दिस अटेंडेंस रजिस्टर इज being kept under the monitor and supervision of the क्लास टीचर। हर क्लास टीचर के पास अपना अपना अटेंडेंस रजिस्टर होता है जिसमें बच्चों की डिटेल्स दे रखी होती हैं, प्लस उनकी डेली अटेंडेंस उसमें रिकॉर्ड होती है। ठीक है, इफ़ द चाइल्ड इज़ प्रेजेंट, द उनकी प्रेजेंट मार्क करी जाती है, इफ़ द चाइल्ड इज़ एब्सेंट उनकी एब्सेंट मार्क करी जाती है। और अटेंडेंस रजिस्टर में मंथली और ईयरली बेसिस पे बच्चों की अटेंडेंस जो है परसेंटेज में भी निकाली जाती है। ऑल्सो डिटेल्स रिगार्डिंग देयर कॉन्टैक्ट नंबर, देयर एड्रेस एंड देयर पेरेंट्स इंफॉर्मेशन इज़ ऑल्सो बीइंग गिवन सो दैट इन केस ऑफ इमरजेंसी उसको तुरंत यूज़ करा जा सके। ठीक है, now attendance register is a very important record because it gives you the daily information of the students presence and absence in the school, right? देन वी हैव द टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर। अब ऑब्वियसली अगर बच्चों का अटेंडेंस रजिस्टर है तो टीचर्स का भी अटेंडेंस रजिस्टर होगा ही होगा। तो टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर में क्या होता है, जहाँ पे हर टीचर के आने जाने की एक्टिविटीज़ को मेंशन किया जाता है। इफ़ द टीचर इज़ प्रेजेंट, उनकी वो वहाँ पे अपने रजिस्टर में अपने नाम के आगे साइन करते हैं। ठीक है, अगर कोई टीचर एब्सेंट है, अगर उन्होंने लीव ले रखी है, ठीक है, या अगर वो एब्सेंट है, जो भी रीज़न है वो उनके नाम के आगे लिख दिया जाता है। ठीक है, so every school maintains the teachers attendance register to accord the daily attendance of the teacher। हर एक टीचर की डेली अटेंडेंस जो मेंशन करी जाती है वो टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर में मेंशन करी जाती है। सो वी कैन सी दैट वी हैव बोथ द pupils और द स्टूडेंट्स अटेंडेंस रजिस्टर जहाँ पे हम बच्चों की अटेंडेंस रिकॉर्ड करते हैं। ऑल्सो वी हैव द टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर जहाँ पे हम टीचर्स की अटेंडेंस रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द विजिटर्स बुक। नाउ विजिटर्स बुक क्या होता है कि जितने भी लोग स्कूल में आते हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स के अलावा जो भी लोग आते हैं स्कूल में, चाहे वो कोई गार्जियन हो या कोई भी इंसान हो जो किसी इन्फॉर्मेशन या इंक्वायरी पर्पस से आया है, किसी भी वजह से स्कूल में आया है, तो ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए कि कब कौन स्कूल में आ रहा है, जा रहा है। तो जिसके लिए एक विज़िटर बुक बनाई जाती है जिसमें जो भी पर्सन आया है स्कूल आवर्स के टाइम पे या जब भी आया है, उसमें उसकी डिटेल्स, उसका नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस एंड येस पर्पस ऑफ द विज़िट मेंशन करा जाता है कि भाई स्कूल आने की वजह क्या है। ऑल दिस सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशंस आर बीइंग रिकॉर्डेड इन द विजिटर्स बुक। नाउ ये करने का पर्पस ये होता है कि ये पता रहता है कि कब कौन किस पर्पस से स्कूल में आया है, और ये सेफ्टी पर्पस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नाउ ये कुछ आपके रिकॉर्ड्स थे, रजिस्टर्स हैं। बहुत से ऐसे रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स होते हैं, देर आर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स जो मेंटेन किए जाते हैं, बट दीज आर सम ऑफ द मेन एंड इम्पॉर्टेंट वंस जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द नेक्स्ट topic in this. Yes, we have the sources of income and expenditure. Okay, नाउ सोर्सेज एंड एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बोथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो कि स्कूल फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है, जिसकी मीनिंग आपके स्क्रीन पे आप देख भी सकते हो। ठीक है, इनकम इज़ बेसिकली जितना भी कैपिटल या फाइनेंस जो स्कूल ने कमाया है, ठीक है,
और एक्सपेंडिचर मतलब कि जितने भी खर्चे हुए हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आखिर स्कूल फाइनेंस का मीनिंग क्या है, ताकि हम इनकम और एक्सपेंडिचर का मतलब अच्छे से समझ सकें। सो फाइनेंस इज़ द मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड अदर वैल्यूएबल्स विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। फाइनेंस जो मनी रिलेटेड टर्म है, जहाँ पे कैश रिलेटेड या मनी रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रखी जाती है, प्लस पैसे का सारा मैनेजमेंट किया जाता है। ऑल द एक्टिविटीज़ दैट आर रिलेटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ मनी is known as the finance. Now, school finance means that the required amount of money for operating school operations effectively and efficiently. जब हम school finance की बात करें, so it basically refers to that money or that finance जो हम स्कूल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको ऑपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ना यहाँ पर वी हैव द टू कैटेगरीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब हम पहले समझते हैं कि इनकम का मतलब कि सोर्स, जहाँ से वो सोर्सेज जहाँ से वो मनी हमारे पास आ रहा है, ठीक है। सो बेसिकली द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द स्कूल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस पार्ट्स, जिसमें पहला गवर्नमेंट ग्रांट्स है। गवर्नमेंट ग्रांट्स का मतलब हो गया द इनकम और द money which is being given by the government to the schools। भाई जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती हैं, दे एलोकेट सम फंड्स फॉर द स्कूल, ताकि स्कूल्स जो हैं अपनी एक्टिविटीज़ को बिना किसी रुकावट या ऑब्स्टिकल के कैरी ऑन कर सकें। अब गवर्नमेंट ग्रांट्स की अगर हम बात करें तो यू कैन सी दैट दीज आर रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर वेरियस कंपोनेंट्स, अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ फंड्स एलोकेट करती है इन द नेम ऑफ द स्कूल। नाउ दीज फंड्स कैन बी यूज्ड फॉर द सैलरी और द प्रोग्राम्स और द इक्विपमेंट्स, परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स, एनीथिंग। नाउ अंडर प्लान एंड नॉन प्लान हेड्स, ग्रांट्स अंडर प्लान हेड्स इंक्लूड ग्रांट्स फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। नाउ दो तरह के हमारे पास कैटेगरी हैं। प्लान हेड्स यानी जो पहले से चीज़ें प्लान करी हुई हैं वो एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, अगर कोई कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटी है या कोई न्यू स्कीम है, कोई प्रोग्राम है जो किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए स्कूल में एलोकेट करी जानी है, वो सब प्लान हेड्स एक्टिविटीज़ में आती हैं। देन देयर आर सम ग्रांट्स जो नॉन प्लान एक्टिविटीज़ के लिए दी जाती हैं, जैसे कि हमारे जो रेगुलर या ऑन गोइंग प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। अब क्या है कि इनके लिए बजट बनाया जाता है, इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए और प्लस इन इंस्टीट्यूशंस के लिए एक बजट बनाया जाता है, जिनको गवर्नमेंट से अप्रूव करने के बाद एलोकेट कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट ग्रांट्स का मतलब यहाँ पर उन सोर्सेज से है जो गवर्नमेंट सोर्सेज से जो पैसा स्कूल को मिलता है। अगर हम प्राइवेट सोर्सेज की बात करें, ओके, नेक्स्ट वी हैव द प्राइवेट सोर्सेज। वेट, येस, नाउ प्राइवेट सोर्सेज की अगर हम बात करें, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि दीज आर द फंड्स और द कैपिटल असिस्टेंस विच इज़ बीइंग डन बाय द प्राइवेट सोर्सेज, ठीक है। जो प्राइवेट हमारे जितने भी सोर्सेज है जहाँ से हमें पैसा मिलता है, अब इसमें भी हमारे पास वेरियस सब कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल रिसिप्ट्स और असिस्टेंस गिवन फ्रॉम अदर एजेंसीज़, जो अलग अलग बोर्ड्स होते हैं, अलग अलग एजेंसीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल यूनिसेफ है, एनसीईआरटी है, जब ये किसी भी तरीके से मॉनेटरी हेल्प करते हैं या असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं फॉर द वेरियस स्कीम्स ऑफ द स्कूल, तो वो हम रिसिप्ट्स और असिस्टेंस फ्रॉम अदर एजेंसीज़ के अंडर में रखते हैं। देन वी हैव वेरियस लोकल बॉडीज़, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गई, पंचायत समिति हो गई, जो स्कूल को टाइम टू टाइम उनके अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए मॉनेटरी हेल्प या फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं। देन वी हैव द वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन एंड डोनेशंस। येस, बहुत बार होता है दैट देर आर वेरियस एनजीओज़ और वेरियस बिजनेस कम्युनिटीज़ जो स्कूल्स में कंट्रीब्यूट करते हैं या डोनेशन देते हैं। तो किसी भी तरह का डोनेशन या कंट्रीब्यूशन अपनी मर्ज़ी से जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एनजीओ या कोई भी कम्युनिटी करती है स्कूल्स के लिए, तो उसे हम वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन या डोनेशन के अंडर में रखते हैं। नाउ देन वी हैव इंडोमेंट्स। इंडोमेंट्स में क्या होता है, इट इंक्लूड्स द हेल्प, मॉनेटरी हेल्प फ्रॉम द वेरियस रिलीजियस एंड चैरिटेबल एजेंसीज़। जो भी अलग अलग एजेंसीज़ हैं, जो कि कोई धार्मिक संस्था है या कोई चैरिटेबल एजेंसी है, ठीक है, इस तरह के जितने भी एजेंसीज जब आकर के स्कूल को कोई मॉनेटरी या फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते, तो उसे हम इंडोमेंट कहते हैं। देन वी हैव द फीस, जो कि ऑब्वियसली हर स्कूल में एक फ़ीस चार्ज करी जाती है, सम अमाउंट ऑफ फीस इज़ चार्ज्ड बाय द स्टूडेंट्स, जिन जहाँ पे बच्चे जो हैं वो स्कूल फ़ीस पे करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्कूल फ़ीस है वो तो ऑब्वियसली मंथली हर सेट होती है कि भाई 3 महीने की कितनी फ़ीस है, या फिर
मंथली या ईयरली क्या सीन है, वो तो हर स्कूल अपने अपने हिसाब से डिसाइड करता है. बट येस, फीस ऑल्सो कम्स अंडर द प्राइवेट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्कूल. नाउ दिस फीस इज लेटर यूज फॉर द वेरियस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ फॉर द स्टूडेंट्स. बच्चों के लिए इस फीस को स्कूल के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए इसे यूज़ करा जाता है. देन वी हैव सम अदर सोर्सेज ऑफ इनकम ऑल्सो. अदर सोर्सेज ऑफ इनकम में आ जाएगा दैट द इनकम विच इज़ गेन्ड बाय द स्कूल बाय द सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स और एग्जामिनेशंस. कई जितने भी न्यूज़पेपर स्कूल में होते हैं उनको जब बेचा जाता है तो जो इनकम होती है, या एग्जामिनेशंस जो हेल्ड कराए जाते हैं, स्कूल्स जो है सेंटर बनाए जाते हैं फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस, उसके लिए भी उन्हें मनी या इनकम उनको जनरेट करते हैं वो लोग. देन वी हैव इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट्स. ऑब्वियसली जो स्कूल का जो भी पैसा है जो बैंक्स में सेव है तो उस पर उन्हें कुछ इंटरेस्ट मिलता होगा, दैट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम. और स्कूल की जो अपनी भी कुछ सेविंग होती है वो सब भी हम इसी में काउंट करते हैं, राइट. सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द स्कूल. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर यानी खर्चों की हम बात कर रहे हैं. ऑब्वियसली देर आर सो मेनी एक्सपेंसेस विच अ स्कूल हैज़ टू बेयर. बहुत सारे खर्चे होते हैं, फ्रॉम डेली एक्टिविटीज़ टू द एक्टिविटीज़ विच हैपन वंस और ट्वाइस इन अ ईयर. अलग अलग तरह के छोटे बड़े खर्चे होते हैं. नाउ जितनी भी इनकम हुई है, ऑब्वियसली दैट इनकम हैज़ टू बी कैटेगराइज्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज़. तो अब किस किस तरह के खर्चे स्कूल के सामने आते हैं उसको हम देखते हैं. पहला है एक्सपेंडिचर ऑन प्लान एंड नॉन प्लान हेड्स. नाउ कुछ एक्टिविटीज़ जो हम प्लान करते हैं और कुछ जो नॉन प्लान एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें किस तरह से खर्चे होते हैं वो हम देखते हैं. एक्सपेंडिचर ऑन प्लान हेड्स इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्कूल बिल्डिंग एक्सेट्रा. आपके जितने भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी स्कूल के डेवलपमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो या रेनोवेशन करवा रहे हो स्कूल के किसी भी पार्ट में, तो वो सब आपके प्लान हेड एक्सपेंडिचर के अंडर में आते हैं. नाउ जो आपके नॉन प्लान हेड्स में कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू ऑन गोइंग एंड रेगुलर प्रोग्राम. जितने भी हमारे रेगुलर प्रोग्राम्स चल रहे हैं या जो ऑन गोइंग यानी जो हमेशा से चलते आ रहे हैं, या जो डेली बेसिस पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उस तरह के जितने भी खर्चे उन एक्टिविटीज़ पे होते हैं उसे हम नॉन प्लान हेड के अंडर रखते हैं, क्योंकि वो पता होते हैं और वो रोज़ की बातें होती हैं, रोज़ के खर्चे होते हैं, इसलिए उनको नॉन प्लान हेड में रखा जाता है. देन वी हैव द रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर. रिकरिंग मतलब बार बार जो चीज़ रिपीट होना. तो रिकरिंग एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो एवरी ईयर, जो हमें पता होता है हर साल हमारे सामने आते रहते हैं, बार बार एट अ रेगुलर टाइम पीरियड वो खर्चे हमारे सामने आते हैं. फॉर एग्जांपल सैलरी है, अब हर मंथ आपको अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी होती है, तो वो जो एक्सपेंसेस हैं वो रिकरिंग है नेचर में, यानी वो बार बार हर एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपके सामने आएंगे. टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, या वाटर बिल है, ये सारे जो चार्जेस होते हैं ये हर एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ऑन अ मंथली बेसिस हमें देने ही देने पड़ते हैं. तो ये रिकरिंग एक्सपेंडिचर हैं जो बार बार हमारे सामने आते हैं. नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो साल में एक या दो बार हमारे सामने आते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑन सम स्पेशल प्रोग्राम या परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा. येस, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने इक्विपमेंट्स खरीदे, अब हम हर दिन या हर मंथ तो कोई इक्विपमेंट खरीदेंगे नहीं. हम वैसे भी एक जब भी इक्विपमेंट्स खरीदे जाते हैं स्कूल में तो एक प्रॉपर लिस्ट बना ली जाती है, और एक ही साथ सारे इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स अरेंज कर लिए जाते हैं. तो ये खर्चे ऐसे होते हैं जो साल में कहीं एक आध बार होते हैं, बिकॉज वंस दोज इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स हैव बीन बॉट, तो काफ़ी लंबे समय तक के लिए फुर्सत हो जाती है. ऑल्सो मान लीजिए कोई स्पेशल प्रोग्राम है या एनुअल फंक्शन वगैरह मान लीजिए स्कूल में रखा जा रहा है, तो वो भी साल में एक ही बार होना होता है. तो वो ऐसा खर्चा है जो बार बार हमारे सामने नहीं आता है, दैट इज़ वाई उसको नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर हम कहते हैं. सो बेसिकली ये हमारे जो एक्सपेंडिचर या खर्चे हैं उनको हम दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्लान एंड नॉन प्लान एंड रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर में. सो इन दिस वीडियो ऑफ टुडे हमने जो स्कूल फर्नीचर, स्कूल ऑफिस जो कि स्कूल कॉम्प्लेक्स का पार्ट था वो, देन वी हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स कि किस तरीके से स्कूल रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दे सर्व और प्रोवाइड टू अस, और किस किस तरह के इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए ही किए जाने चाहिए. ऑल्सो क्या इनकम और एक्सपेंडिचर के सोर्सेज हैं, उन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा है. आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू. In the next video, we will further talk about the remaining topics related to this subject. Okay, thank you, class.